بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں نصیر الیاس اور اس ویڈیو میں ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں جی جنرل سائنس کلاس 9 کی مکمل کتاب کے شارٹ کویسچن۔ اگر آپ نے ابھی تک چیپٹر وائز شارٹ کویسچن دیکھ لیے ہیں تو پھر یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں سے تیار کر لیں کیونکہ یہ وہی سیم ہے، بس ان 6 چیپٹر کو ملا کے ایک ویڈیو بنا دی گئی ہے تاکہ آپ لوگ ایزیلی یہاں سے ریوائز کر لیں۔ تو آئیے جی ان کو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ تو آئیے جی، سائنس سے کیا مراد ہے؟ سائنس ایک لاطینی لفظ سے سائنشیا سے عہد کیا گیا ہے جس کے لغوی معنی حقائق کا اصلی شکل میں باقاعدہ مطالعہ کرنا ہے۔ سائنسی طریقہ کار سے کیا مراد ہے؟ تجربات کی روشنی میں سائنسی قانون وضع کرنا سائنسی طریقہ کار کہلاتا ہے۔ اسلامی کیمیاء گری کی اہم دریافتیں کون سی ہیں؟ اسلامی کیمیاء گری کا دور کون سا ہے؟ 600 سے 1400 سن عیسوی کا دور اسلامی کیمیاء گری کا دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں بہت سے لائق اور تحقیق ذہن رکھنے والے لوگوں نے مادے کے خواص کا مشاہدہ کیا، نئے تجربات کیے گئے اور نئے ایلیمنٹ دریافت کیے گئے، مثلاً آرسینک۔ اس کے بعد نیکسٹ جی ہمارے پاس سوال نمبر 4 ہے اس کا۔ یونانی فلاسفر کے مطابق دنیا کی ہر چیز کن ایلیمنٹ سے مل کر بنی ہے؟ یونانی فلاسفر کا خیال تھا کہ دنیا میں موجود ہر چیز 4 ایلیمنٹ سے مل کر بنی ہے۔ ایلیمنٹس کے مختلف تناسب سے ایک شے دوسری شے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ 4 عناصر درج ذیل ہیں۔ یہ جی آگ، ہوا، مٹی، پانی۔ آگ، ہوا، مٹی اور پانی سے یہ 4 چیزیں مل کے بنی ہیں۔ اس کے بعد جابر بن حیان نے کون سے تضاد دریافت کی ہے؟ جابر بن حیان کی سائنس کے اعتماد یا جابر بن حیان کی 2 کتابوں کے نام؟ سب کا جواب ایک ہی ہے۔ جابر بن حیان نے کش دھاتوں کو پگھلا کر صاف کرنے، فولاد تیار کرنے، چمڑا بنانے، کپڑا رنگنے، لوہے کو زنگ سے بچانے کے طریقے معلوم کیے۔ جابر بن حیان نے متزلزل تیزاب دریافت کیے تھے: سلفیورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ، ہائیڈروفلورک ایسڈ۔ الکتاب اور الخالص جابر بن حیان کی مشہور کتابیں ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے، الکیمیا کا لاطینی میں ترجمہ کس نے کیا؟ لاطینی ترجمہ کب اور کس نے کیا؟ الکیمیا کا لاطینی ترجمہ ایک انگریز رابرٹ آف چیسٹر نے 1144 میں کیا۔ کب اور کس نے جابر بن حیان کی 9 کتابوں کا فرانسیسی ترجمہ کیا؟ 1892 میں مسٹر اہومس نے جابر بن حیان کی 9 کتابوں کا فرانسیسی ترجمہ کیا۔ محمد بن زکریا نے کن بیماریوں کی علامات اور علاج دریافت کیے؟ یا بیماریوں پر تحقیق کے حوالے سے محمد بن زکریا کی خدمات لکھیں یا محمد بن زکریا رازی کی خدمات لکھیں۔ یہ جی ہمارے پاس جواب ہے اس کا۔ محمد بن زکریا نے سب سے پہلے چیچک اور خسرہ کے اسباب، علامات اور علاج کے بارے میں تفصیل سے روشنی ڈالی۔ ان بیماریوں سے متعلق الرازی کے تحریر کردہ اصول آج بھی تسلیم کیے جاتے ہیں۔ الرازی پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے تخمیر کے ذریعے الکحل تیار کیا۔ آگے جی ڈاکٹر عبدالقدیر پر 2 سطریں لکھیں۔ پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر ہاں 1 اپریل 1963 کو بھارت کے شہر بھوپال میں پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر نے ابتدائی تعلیم بھوپال سے حاصل کی، کراچی سے ڈی جی سائنس کالج سے BS کی ڈگری حاصل کی۔ محمد بن زکریا الرازی نے کیمیائی مرکبات کو کتنے گروپوں میں تقسیم کیا؟ محمد بن زکریا الرازی نے کیمیائی مرکبات کو 4 گروپس میں تقسیم کیا: معدنیاتی، نباتاتی، اس کے بعد حیواناتی، پھر جی ہمارے پاس ہے ماخوذ۔ یہ 4 ہیں جی۔ اس کے بعد البرونی کے 2 اہم کارنامے لکھیے۔ البرونی نے دریافت کیا ہے کہ روشنی آواز سے زیادہ تیز رفتار ہے۔ البرونی نے پہلی بار زمین کا نصف قطر معلوم کیا۔ البرونی کون کون سے مضامین میں ماہر تھا؟ البرونی حیت علم نجوم، علم فلکیات، ریاضی، جغرافیہ اور تاریخ کا ماہر تھا۔ ابو علی سینا کا پورا نام کیا ہے؟ ابو علی سینا کی 2 خدمات لکھیں یا ابو علی سینا کے 2 کتب کے نام لکھیں۔ شیخ اویس۔ ابو علی سینا کا پورا نام ابو علی حسین ابن عبداللہ ہے۔ ابو علی سینا کو مسلم دنیا کا ارسطو تسلیم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے تقریباً 760 جڑی بوٹیوں پر تحقیقی مقالہ تحریر کیا۔ وہ نہ صرف کیمیاء دان بلکہ دعا ساز بھی تھے۔ وہ پہلے کیمیاء دان تھے جنہوں نے اس خیال کو رد کیا کہ عام دھاتوں کو سونے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ کتاب الشفا، القانون فی الطب ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ ابو علی سینا کو کون کون سے مضامین سے واقف تھا؟ مسلم دنیا کا ارسطو کسے کہتے ہیں؟
بول سینا کو مثلاً دنیا کا ارسطو کہا جاتا ہے۔ بول سینا نے 100 سے زیادہ کتابیں تالیف کی جو فلسفہ، سائنس، فقہ، ادب اور طب کے بارے میں ہیں۔ فزکس، کیمیا، ریاضی، بیالوجی اور جیسے مضامین سے بھی واقفیت رکھتا تھا۔ پاکستان کے کس سائنسدان کو اور کس نظریہ پر نوبل انعام دیا گیا؟ پاکستان کے واحد نوبل انعام یافتہ سائنسدان کون ہے؟ پاکستان کے واحد نوبل انعام یافتہ سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام نے قدرت کی دو بنیادی فورسز یعنی کہ کمزور نیوکلیئر فورس اور الیکٹرو میگنیٹک فورس کو یکجا کرنے کا نظریہ پیش کیا۔ اس کے بعد 16واں ہمارے پاس سوال ہے، سائنس کی اہم شاخوں کے نام لکھیں۔ فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، علم فلکیات، ریاضی، زراعت، میڈیسن، جیوگرافی۔ فزکس کی تعریف کریں۔ فزکس وہ علم ہے جو بالخصوص مادی اشیاء اور ان کی انرجی سے متعلق ہے۔ فزکس کو پیمائش کی سائنس کا نام بھی دیا گیا ہے۔ میکینکس، حرارت، روشنی، آواز اور الیکٹرسٹی وغیرہ اس کی اہم شاخیں ہیں۔ زراعت سے کیا مراد ہے؟ کھیتی باڑی کے طریقے، گوشت اور دودھ دینے والے جانوروں کو پالنے کا علم زراعت کہلاتا ہے۔ بیالوجی کی تعریف کریں اور بایوس اور لوگوس سے کیا مراد ہے؟ بیالوجی سائنس کی وہ شعبہ ہے جس میں جانداروں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ بایولوجی دو یونانی الفاظ بایوس اور لوگوس سے ماخوذ ہے۔ بایوس کا مطلب ہے زندگی اور لوگوس کا مطلب ہے بحث۔ کیمسٹری کی تعریف بیان کریں۔ کیمسٹری سائنس کی وہ شعبہ ہے جس میں مختلف اشیاء کی ماہر ترکیب اور ان کے کیمیائی خواص کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ زوالوجی یا علم حیوانات کی تعریف کریں۔ جانوروں کے متعلق علم کو زوالوجی یعنی علم حیوانات کہتے ہیں۔ اس میں جانوروں اور انسانوں کی جسامت اور ان کے ماحول کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ باٹنی کی تعریف بیان کریں۔ پودوں کے متعلق علم کو باٹنی یعنی علم نباتات کہتے ہیں۔ اس میں پودوں کی ساخت، نوشوونما اور ان کے ماحول کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ باٹنی اور زوالوجی میں فرق بیان کریں۔ بیالوجی کی دو بڑی شاخوں کے نام لکھیں۔ بیالوجی کی دو بڑی شاخوں کا نام باٹنی اور زوالوجی ہے۔ پودوں کے متعلق علم کو باٹنی یعنی علم نباتات، جانوروں کے متعلق علم کو زوالوجی یعنی کہ علم حیوانات کہتے ہیں۔ علم فلکیات یا اسٹرانومی سے کیا مراد ہے؟ نظام فلکی مثلاً چاند، سورج، ستاروں اور سیاروں کے علم کو علم فلکیات یا اسٹرانومی کہا جاتا ہے۔ فلکیات کے مطالعے میں ریاضی، فزکس کے علوم کا بڑا حصہ ہے۔ میڈیسن کی تعریف کریں۔ یہ سائنس کی وہ شعبہ ہے جو جانداروں کی جسام کی ساخت، امراض کی تشخیص، طریقہ علاج، ادویات کی تیاری، تشخیص، علاج میں استعمال ہونے والے آلات اور مشینوں کے علم سے متعلق ہے۔ جیو فزکس اور آسٹرو فزکس میں فرق بیان کریں۔ جیو فزکس کیا ہے؟ آسٹرو فزکس کیا ہے؟ جیو فزکس زمین کے اندرونی ساحت اور دوسرے زمینی مظاہر کی فزکس کے قوانین کے سے وضاحت جیو فزکس کہلاتا ہے۔ آسٹرو فزکس نظام فلکی کے بارے میں فزکس کے حوالے سے وضاحت آسٹرو فزکس کہلاتا ہے۔ نیکسٹ 27 والا کوشچن ہمارے پاس، فزکس سے کیا مراد ہے؟ بایو فزکس سے کیا مراد ہے؟ بایو فزکس اس میں فزکس کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر بیالوجی کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ بایو کیمسٹری کی تعریف بیان کریں۔ اس میں کیمسٹری کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر بیالوجی کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ دور جدید کے 4 غیر مسلم سائنسدانوں کے نام لکھیں جی۔ یہاں جدید دور کے سائنسدانوں کے نام، دور جدید کے سائنسدانوں میں گلیلیو، آئزیک نیوٹن، گریگر مینڈل، ایڈیسن، مارکونی، آئنسٹائن اور بہت سے دوسرے شامل ہیں۔ 4 مسلمان سائنسدانوں کے نام یہ ہیں جی، جابر بن حیان، محمد بن زکریا رازی، ابن الہیثم البرونی مشہور مسلم سائنسدان ہیں۔ ابن الہیثم کے 2 کارنامے لکھیں۔ ابن الہیثم کی سائنسی خدمات۔ ابن الہیثم نے سب سے پہلے مادہ کے نشیہ کا نام لیا جو بعد میں نیوٹن کے حرکت کے قوانین کے نام سے مشہور ہوا۔ پن ہول کیمرہ بھی ابن الہیثم نے ایجاد کیا۔ ابن الہیثم کی کتاب کا نام کیا ہے؟ ان کی شرح کتاب کا نام کتاب المناظر ہے۔ راجر بیکر کون تھا؟ راجر بیکر نے ابن الہیثم کے مشاہدات سے کام لے کر دوربین ایجاد کیا۔ راجر بیکر نے اپنی تصانیف میں ابن الہیثم کا بار بار ذکر کیا ہے۔ 34 سوال ہے جی، البرونی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ البرونی نے کتنی کتابیں لکھی؟ ان کی مشہور کتاب کا نام لکھیں۔ البرونی کا پورا نام برہان الحق ابو ریحان محمد بن احمد ہے۔ وہ شروع سے ہی البرونی کہلاتے تھے اور وسطی ایشیا کے شہر خوارزم میں قاس کے مقام پر 4 ستمبر 1973 میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ریاضی کے موضوعات پر 150 سے زیادہ کتابیں تحریر کی۔ البرونی کی مشہور کتاب کا نام تحریر المکن ہے۔ وادی سندھ کے بارے میں البرونی کا کیا نظریہ تھا؟ البرونی پہلا شخص تھا جس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ وادی سندھ کسی زمانہ میں سمندر تھا۔ بعد میں ایسا ریت اور کیچڑ جمع ہوتی گئی تو وادی سندھ وجود میں آ گئی۔ جدید ماہرین ارضیات کا بھی یہی حال ہے۔ ٹیکنالوجی سے کیا مراد ہے؟ زمانہ قدیم کی ٹیکنالوجی کی مثال دیجیے۔ 4 قدیم ٹیکنالوجی کا نام لکھیں۔ صنعتی فنون کا علم فنون کے ارتقاء کا مطالعہ اور سائنسی علوم کا تجرباتی استعمال ٹیکنالوجی کہلاتا ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی اشیاء مثلاً
कम्हार का चाक, लोहार की भट्टी, जुलाहे का तकला, किसान का हल और रेहट, चप्पुओं से चलने वाली कश्तियाँ वगैरह सब ज़माना कदीम के इल्म और इसकी टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान ने कब और कहाँ न्यूक्लियर तजर्बात किए? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने दीगर पाकिस्तानी साइंसदानों के तामन से 28 मई 1998 को बलूचिस्तान में चागी के मकाम पर कामयाब न्यूक्लियर तजर्बा किया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान एटमी ताकत बन गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कब और कहाँ पैदा हुए? पाकिस्तान के आलमी शोध याफ्ता एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 1 अप्रैल 1936 को भारत के शहर भोपाल में पैदा हुए। डॉक्टर मुबारकमंद की 2 साइंसी धमाल लिखें। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इनकी सरबराही में न्यूक्लियर साइंसदानों की टीम को चागी रवाना किया, जहां इन्होंने पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर टेस्ट किए। इसके अलावा इन्होंने नेशनल डेवलपमेंट कम्प्लेक्स के DGKC से भी शाहीन मीडियम रेंज मिसाइल ना सिर्फ डिज़ाइन और तैयार किया, बल्कि नहायत कामयाबी से 15 अप्रैल 1999 को इनका तजर्बा भी किया। डॉक्टर अतार रहमान कब और कहाँ पैदा हुए? 2 खिदमत। डॉक्टर अतार रहमान 1942 को दिल्ली में पैदा हुए। उन्होंने मेडिसिन साइंस में ग्रां कदर खिदमत अंजाम दी। डॉक्टर अतार रहमान के अब तक 100-250 से ज़ायद रिसर्च पेपर शाया हो चुके हैं। कई साइंसदानों ने अपनी रिसर्च आगे बढ़ाने के लिए इनसे इस वादा किया। डॉक्टर अतार रहमान दर्जनों मुल्की और बैनुल अक़वामी अवार्ड हासिल कर चुके हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट है हमारे पास, इन 3 एलिमेंट का नाम बताइए जो इंसान में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इंसानी जिस्म कितने एलिमेंट पर मुश्तमिल है, इनकी नाम लिखिए। जानदारों के जिस्म में बहुत से एलिमेंट मुख्तलिफ मकदार में पाए जाते हैं। इनमें 3 एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बुनियादी अहमियत का हामिल है। इंसानी जिस्म भी इन्हीं 3 एलिमेंट पर मुश्तमिल है। कार्बन की तारीफ करें। कार्बन की अहमियत। कार्बन ज़मीन पर पाए जाने वाली तमाम जानदार एशिया का बुनियादी जुज़ू है। कार्बन अर्थ क्रस्ट में मामूली मिकदार में पाया जाता है। कार्बन कुदरती तौर पर पाए जाने वाले मरकबात मसलन कुदरती गैस, पेट्रोलियम और लकड़ी वगैरह का लाजमी जुज़ू है। कार्बन की बहुत थोड़ी अहमियत जिसकी आ गई है। कार्बन की बहुत थोड़ी मिकदार अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा पाई जाती है। ये करीबन 1 लाख मुख्तलिफ किस्म के मरकबात का हिस्सा है। उसके बाद जी 43 है, ऑक्सीजन गैस के 2 इस्तेमाल लिखें। 2 खवास। मौसम सरमा में मुंजमद समंदर के नीचे मछलियाँ कैसे जिंदा रहती हैं? बर्फ के नीचे आबी हयात कैसे जिंदा रहती है? ऑक्सीजन एक बेरंग, बेबू और पानी में मामूली हालतपजीर गैस है। ऑक्सीजन की पानी में मामूली हालतपजीर होने की सलाहियत ही की वजह से मछलियाँ और दीगर तमाम समुद्री जानदार पानी में सांस लेने के काबिल हैं। ऑक्सीजन हवा में पाया जाने वाला एक बड़ा जज़ू है। तो रेस्पिरेशन की 3 और इसकी मसावाद। रेस्पिरेशन ऐसा अमल है जिसमें जानदार पौधों से ऑक्सीजन हासिल करते हैं ताकि खुराक में मौजूद ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से जिस्म को एनर्जी मुहैया की जा सके। इसकी मसावाद ये है जी, हमारे पास ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी और प्लस एनर्जी बनता है इन दोनों के मिलने से। फोटोसेंसिस से क्या मुराद है? इसकी मसावाद लिखिए। फोटोसेंसिस ऐसा अमल है जिसमें सब्ज पौधे सूरज की रोशनी की मौजूदगी में फजा से कार्बन डाइऑक्साइड और ज़मीन से पानी हासिल करके कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज तैयार करते हैं। उसके बाद जी ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज, ये जो है ना इधर से बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस पानी मिलेगा तो क्या बनेगा? ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनेगी। रेस्पिरेशन और फोटोसेंसिस, ये फर्क बयान करना, दोनों ही डेफिनेशन लिख देनी है, इसकी आपने इक्वेशन नहीं लिखनी, ठीक है जी। उसके बाद हाइड्रोकार्बन क्या है और कहाँ पाए जाते हैं? हाइड्रोकार्बन सारा तरीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये सिर्फ 2 एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है। ये कुदरती तौर पर फूसल फ्यूल यानी पेट्रोलियम, कोल और पेंट में पाए जाते हैं। उसके बाद एलोट्रोपी क्या है? एलोट्रोपी की तारीफ करें। जब कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा मुख्तलिफ तबई हालतों में पाया जाता है तो इस अमल को एलोट्रोपी कहते हैं। कार्बन के 2 एलोट्रोपिक फॉर्म के नाम लिखें। डायमंड ग्रेफाइट और विकीबाल कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। कार्बन की 2 नॉन एलोट्रोपिक फॉर्म का नाम लिखें। चारकोल, सूट और कोक कार्बन की नॉन एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। डायमंड कैसे बनता है? हीरे के इस्तेमालात। ये है जी कार्बन की बेरंग, शफाफ और क्रिस्टल हालत है जो ज़मीन की गहराई में बहुत ज़्यादा हरारत और दबाव की वजह से बनता है। ये कायनात में सख्त तरीन शय है, इसलिए ये ग्लास काटने, कीमती पत्थरों को पॉलिश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेफाइट के इस्तेमाल लिखिए। ग्रेफाइट ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त करने वाले खटालियों, ऊष्माशल के इलेक्ट्रोड, लेड पेंसिल बतौर लुब्रिकेंट और रंगसाजी में इस्तेमाल होता है। विकीबाल से क्या मुराद है? विकीबाल के 2 इस्तेमालात। ये कार्बन की तीसरी एलोट्रोपिक फॉर्म है जो कुदरती तौर पर पाई जाती है। विकीबाल बतौर सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और लुब्रिकेंट का इस्तेमाल होता है।
उसके बाद कोक क्या है, इसके दो इस्तेमाल, चारकोल और कोक का एक इस्तेमाल लिखें। कोक कार्बन की एक नाना एलोट्रोपिक फॉर्म है। कोक बतौर ईंधन और मुख्तलिफ कीमी संतों में बतौर तहफीफी हामल भी इस्तेमाल होता है। चारकोल को खतरनाक गैसों को जज़ब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नामियाती कीमिया क्या है, या ऑर्गेनिक कीमिया की तारीफ करें। ये चंद ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम लिखें। ऑर्गेनिक कीमिया कार्बन के कंपाउंड की कीमिया है। ऐसे अक्सर कंपाउंड में हाइड्रोजन और बहुत से दूसरे कंपाउंड में ऑक्सीजन भी मौजूद होती है। मसनूई रेशे, प्लास्टिक, दवाइयाँ और पेंट वगैरह अहम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ईथेन गैस किस काम आती है? ईथेन गैस फलों, बिलखसूस केले को कबल वक्त पकाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कच्चे केले को महसूस डिब्बों में डालकर महसूस जगहों पर रखा जाता है जहां ईथेन गैस की मकदार ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे केले और सब्जियां पक जाती हैं। पानी की दो सूसियाँ और पानी के बाद पानी की तीन कुदरती हालतों के नाम लिखें। पानी सतह जमीन पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कंपाउंड है। मिसाल के तौर पर जमीन का 3/4 हिस्सा समंदरों से घिरा हुआ है। पानी वाहद कंपाउंड है जो कुदरती तौर पर मादा की तीनों हालतों, माया, ठोस यानी कि बर्फ, और गैस यानी कि पानी के बरात में पाया जाता है। पानी का फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? पानी एक बेरंग बेरबू माया है। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है जी 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी बर्फ पानी की सतह पर क्यों तैरती है? बर्फ हल्की होने की वजह से पानी की सतह पर तैरती है। टेम्परेचर में इजाफे के साथ जो जो बर्फ पिघल कर पानी में तब्दील हो जाती है। नाइट्रोजन साइकिल या चक्कर की तारीफ करें। फितरत में बार बार और मुसलसल होने वाला ये अमल जिसमें नाइट्रोजन जानदारों से मट्टी और मट्टी से जानदारों में मुंतकिल होती रहती है, नाइट्रोजन चक्कर कहलाता है। कार्बन चक्कर से क्या मुराद है? फोटोसिंथेसिस का अमल जिसमें फिजा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है। और रेस्पिरेशन, जलने और गलने सलने के अमल से कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा फिजा में वापस आ जाती है। इस चक्कर को कार्बन चक्कर कहते हैं। रियल गैसों से क्या मुराद है? नोबल गैस से क्या मुराद है? कोई से दो रियल गैसों के नाम लिखें। ऐसी गैसें जो फिजा में बहुत कम मिकदार में पाई जाती हैं रियल और नोबल गैसें कहलाती हैं। न्यूऑन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन और हीलियम चंद नोबल गैसें हैं। आर्गन और रेडॉन के इस्तेमाल। आर्गन बिजली के बल्बों में नॉन रिएक्टिव गैस के तौर पर और मुख्तलिफ अक़साम के फ्लोरेसेंट और फोटो ट्यूब्स में इस्तेमाल होती है। रेडॉन कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। क्रिप्टॉन और रेडॉन के इस्तेमाल। क्रिप्टॉन फ्लोरेसेंट रोशनियों और फोटोग्राफी प्लेट्स, फ्लैश लैंप्स में इस्तेमाल होती है। रेडॉन कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। न्यूऑन गैस का इस्तेमाल लिखें। न्यूऑन बड़की रूह गुजरने पर सूरज चमक दहकती चमक खारिज करती है, जिसकी वजह से इसे एडवर्टाइजिंग साइन बोर्ड में इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरीन के दो इस्तेमाल। क्लोरीन, अगरचे क्लोरीन गैस बहुत जहरीली है, लेकिन रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसके कई फ़ायदेमंद इस्तेमाल भी हैं। ये पीने वाले पानी और नहाने वाले तालाबों के पानी को जरासीम से पाक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। वाटर प्रूफिंग के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? पीवीसी से क्या मुराद है? पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड क्लोरीन का एक आम प्लास्टिक मरकब है। इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हैं। खास तौर पर वाटर प्रूफ मवाद बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम जानदारों के लिए क्यों ज़रूरी है? इंसानी जिस्म में कैल्शियम का क्या किरदार है? ये एलिमेंट भी तमाम जानदारों में मौजूद होता है। ये सेल वाल, हड्डियों और शेल्स का लाजमी जज़ू है। ये खून के जमने में भी अहम किरदार अदा करता है। नेक्स्ट जी, जलना कैसा अमल है? जलने के दौरान क्या पैदा होता है? जलना एक ऐसा कीमी अमल है जिससे रोशनी या हरारत पैदा होती है। इस अमल में जलने वाला मादा आमतौर पर हवा की ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्साइड बनाता है। हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की फीसद मकदार क्या है? हवा में नाइट्रोजन की 78% मकदार और ऑक्सीजन की 21% मकदार मौजूद है। आयोडीन के इस्तेमाल लिखें। आमतौर पर जरासीम कश के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से जानदारों के लिए एक ज़रूरी एलिमेंट है। आयोडाइड की खुराक में कमी गिलट की बीमारी का बायस बनती है। आयोडीन 131 थायराइड ग्लैंड के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आयोडीन टिंचर क्या है? इसका इस्तेमाल लिखिए। यह एलिमेंट रंगीन फोटोग्राफी और अद्विया शादी में इस्तेमाल किया होता है। आयोडीन का एथेनॉल में हल्का महलूल आयोडीन टिंचर कहलाता है। आयरन के दो सनती इस्तेमाल लिखें। आयरन अर्थ क्रस्ट में एल्युमिनियम के बाद सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। यह ज़माना कदीम से इंसान के इस्तेमाल में रहा है। ये पूरी दुनिया में मुआशी और सनती अहमियत के पेश नज़र
मेटल्स में ये एक इसका एक मुनफरिद नाम है। ये इंजीनियरिंग में मुख्तलिफ मकासद मसलन कार की बॉडीज, रेलवे लाइंस, स्टील के पाइप और औजार वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। कार्बोहाइड्रेट से क्या बना है? कार्बोहाइड्रेट ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल हो, मसलन शुगर, स्टार्च और सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। मेटाबॉलिज्म की तरीफ कीजिए। तमाम जानदारों में मुख्तलिफ किस्म के कीमी अमल होते रहते हैं जिनको मजमूई तौर पर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में फ़र्क। कैटाबॉलिज्म एक तहरीबी कीमी अमल है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स की मुख्तलिफ एंजाइम्स की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन होती है। कंपाउंड मरहलावार टूटते हैं, छोटे छोटे पैकेटों की सूरत में एनर्जी हासिल होती है। एनाबॉलिज्म एक तमीरी कीमी अमल है। कार्बोहाइड्रेट का पौधों में बनना इसकी एक मिसाल है जिसमें सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को इस्तेमाल किया जाता है। इस अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। एडिपोज टिश्यूज क्या होते हैं, ये क्या काम करते हैं? फालतू चिकनाइयाँ या फैट्स, जिस्म के फैट्स हीरा करने वाले टिश्यूज में स्टोर हो जाते हैं जिन्हें एडिपोज टिश्यूज कहा जाता है। कहते हैं शदीद भूख की सूरत में जब जिस्म में ग्लूकोज की कमी वाक़ हो जाती है तो रेस्पिरेशन के अमल में ग्लूकोज की बजाय फैट इस्तेमाल होते हैं। डाइजेशन और एसिमिलेशन में फ़र्क। डाइजेशन खुराक के अज़्ज़ा को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ने या तक़सीम करने का अमल है जिसमें खुराक के अज़्ज़ा को इनकी इकाइयों में तब्दील किया जाता है। जब इन अज़्ज़ा का जिस्म में जज़ब होकर जज़ुए बदन बनना एसिमिलेशन कहलाता है। फैट्स हमें कितने ज़राए से हासिल होते हैं? फैट्स हमें दो ज़राए से हासिल होते हैं। एक हवानी ज़रिया मसलन घी, मक्खन, मलाई, चर्बी वाला गोश्त और मछली का तेल। दूसरा नबाताती ज़रिया मतलब सरसों, जैतून, नारियल, मकई, सोयाबीन, बिनोला, सूरजमुखी और मूंगफली वगैरह। कैटालिस्ट से क्या मुराद है? ऐसे कंपाउंड जो कीमी तौर पर बदले बगैर केमिकल रिएक्शन तब्दील कर दें या इसकी रफ्तार में इजाफा कर दें कैटालिस्ट कहलाते हैं। सबस्ट्रेट की तारीफ कीजिए। वो अशिया जिन पर कोई एंजाइम्स अमल करता है सबस्ट्रेट कहलाता है। वो एंजाइम जिस पर कोई वो अशिया जिन पर कोई एंजाइम्स अमल करता है। को एंजाइम्स कुछ एंजाइम्स को कैटाबॉलिक प्रोसेस की अदायगी के लिए दूसरे कंपाउंड की ज़रूरत होती है जिनको कोएंजाइम कहते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में एंजाइम्स का क्या किरदार है? एंजाइम्स हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। एंजाइम्स केमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बेहद मुफीद साबित हुए हैं। ये पनीर की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं। फूड प्रोसेसिंग की सनत में इनका इस्तेमाल बहुत आम है। पापेन एंजाइम्स पपाया के पौधे से हासिल किया जाता है और ये गोश्त को नरम करने के लिए इस्तेमाल होता है। एंटीजीन्स क्या हैं? अगरचे तमाम इंसानों का ब्लड बाजार एक जैसा नजर आता है लेकिन ये कीमी तौर पर एक इंसान से दूसरे इंसान में मुख्तलिफ होता है। ये फ़र्क खून के सुरह जसीमों की सतह पर मौजूद मुख्तलिफ कीमी मादों के इख्तलाफ की वजह से होता है। ये कीमी मादे एंटीजीन्स कहलाते हैं। ब्लड में पाए जाने वाले सेल्स की तीन इकसाम: रेड सेल, वाइट सेल और ब्लड प्लेटलेट्स। जिस्म में खून का क्या किरदार है? खून के दो फाल तहरीर कीजिए। खून जिंदगी का दरिया है। ये जिस्म के तमाम हिस्सों में इनफरादी सेल तक ग़िज़ा और ऑक्सीजन की तस्सील करता है और जिस्म के तमाम हिस्सों से फाजिल मादाजार को गुर्दों और जिगर तक लाता है। खून के रेड सेल गैसों की तस्सील, वाइट सेल जिस्म के मदाफ़ाती निज़ाम और ब्लड प्लेटलेट्स खून के इनके जमाने के लिए ज़रूरी हैं। ब्लड सेल के कोई से दो काम: खून के रेड सेल गैसों की तस्सील, वाइट सेल जिस्म के मदाफ़ाती निज़ाम, प्लेटलेट्स खून के इंजमाल के लिए ज़रूरी है। ये ऊपर वाला ही है। प्लाज्मा और सीरम में क्या फ़र्क है? प्लाज्मा में खून के रेड सेल, वाइट सेल और ब्लड प्लेटलेट्स तैर रहे होते हैं। खून से अगर ब्लड सेल्स अलग कर लिए जाए तो बाकी प्लाज्मा रह जाता है। प्लाज्मा से खून को जमाने वाली फाइब्रिनोजन अलग कर लें तो बाकी सीरम रह जाता है। खून का एबीओ सिस्टम क्या है? एंटीजन और एंटीबॉडीज की बुनियाद पर इंसानी खून ए बी और ओ ग्रुप में तकसीम किया जा सकता है। इसको खून का एबीओ सिस्टम कहते हैं। आलमी डोनर्स कौन होते हैं? वो शख्स जो ना ए एंटीबॉडीज रखता हो और ना ही बी एंटीजन, लेकिन दोनों ए और बी एंटीबॉडीज का हामिल हो तो उस ब्लड उसका उस ब्लड का ग्रुप ओ होगा और इस ब्लड ग्रुप के हामिल
افراد عالمی ڈونرز کہلائیں گے۔ عالمی وصول کنندہ کون ہوتے ہیں؟ اے بی بلڈ گروپ کے اشخاص عالمی وصول کنندے کہلاتے ہیں کیونکہ ان میں دونوں اے اور بی اینٹیجنز ہوتی ہیں۔ ڈی این اے سے کیا مراد ہے؟ کسی انسان کی وراثتی خصوصیات کے بارے میں معلومات اس کی جینز میں موجود ہوتی ہیں۔ یہ جین ایک خاص قسم کے کیمیائی مرکب پر مشتمل ہوتی ہے جنہیں ڈی این اے کہتے ہیں۔ ڈی این اے ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ کا مفہوم ہے اور یہ سیل کے نیوکلس میں پائے جانے والے کروموسوم کا حصہ ہے۔ ڈی این اے ریپلیکیشن سے کیا مراد ہے؟ ایک ڈی این اے مالیکول جب اپنے جیسا دوسرا ڈی این اے مالیکول بناتا ہے تو اس عمل کو ڈی این اے ریپلیکیشن کہتے ہیں۔ جین سے کیا مراد ہے؟ ڈی این اے کے محسوس حصے مختلف خلیات اپنے میں پوشیدہ رکھتے ہیں، ان حصوں کو جینز کہتے ہیں۔ جنیوم کیا ہے؟ ایک سیل کے اندر موجود تمام جینز کو جنیوم کہتے ہیں۔ انسانی جنیوم میں 3.2 بلین پیر موجود ہوتے ہیں۔ بیٹی جین کیا ہے؟ بیٹی جین کیڑے مکوڑے اور پیٹس چھوٹے جانوروں کے خلاف پودوں میں مدافعت پیدا کرتا ہے۔ جینیٹک انجینئرنگ کی تعریف کریں۔ وہ تکنیک جس کے ذریعے ایک جاندار سے مختلف جینز دوسرے جاندار کے وراثتی مادے میں منتخب جگہ پر داخل کیے جاتے ہیں جینیٹک انجینئرنگ کہلاتا ہے۔ ٹرانسجینک جاندار کسے کہتے ہیں؟ وہ جاندار جو بیرونی جین موصول کرتا ہے ٹرانسجینک جاندار کہلاتا ہے۔ اینٹی بایوٹکس کیا ہے؟ وہ مرکبہ جو بیکٹیریا کو مار دیں یعنی کہ نوشونما کو روک دیں اینٹی بایوٹکس کہلاتے ہیں۔ سیفلوسپورینز کیا ہے اور کب دریافت ہوئی؟ یہ پھپھوندی کی ایک قسم مینوسپوریم سے حاصل کی جاتی ہے اور 1948 میں دریافت ہوئی۔ یہ ان بیکٹیریا کے خلاف مفید ہے جو پینسلین کے خلاف مدافعت پیدا کر لیتے۔ اس کے بعد 94 والا کویسچن ہے، ٹیٹرا سائیکلین کو براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹکس کیوں کہا جاتا ہے؟ ٹیٹرا سائیکلین اسٹریپٹومائسس بیکٹیریا بناتے ہیں جو کہ بیکٹیریا کی بہت سی اقسام کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے، اس لیے انہیں براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹکس کہتے ہیں۔ ویکسینز کی تعریف کریں۔ ویکسین پیتھوجینک مائکروب کی ایک ایسی تبدیل شدہ قسم ہوتی ہے جو کہ بے ضرر ہے اور انسان کے مدافعتی سسٹم کو متحرک کر دیتی ہے۔ ویکسین کی اصطلاح لاطینی لفظ ویکا سے دی گئی ہے جس کا مطلب گائے ہے۔ ری سائیکلنگ سے کیا مراد ہے؟ استعمال شدہ بیکار مادوں سے دوبارہ نئی اور قابل استعمال چیزیں پیدا کرنا ری سائیکلنگ کہلاتا ہے۔ غذا کی تعریف کریں۔ غذا انسانی جسم کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ سائنسی لحاظ سے غذا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو ہضم ہونے کے بعد ہم کو مختلف کام سر انجام دینے کے لیے انرجی مہیا کرتی ہے اور اس کے نوشونما میں ممدن و معاون ثابت ہوتی ہے۔ غذا کے بنیادی اجزاء کون سے ہیں؟ پانی، کاربوہائیڈریٹ، فیٹس اور آئل، پروٹین، وٹامنز اور نمکیات غذا کے بنیادی اجزاء ہیں۔ پانی کے 2 افعال تحریر کیجیے۔ پانی کا جسم میں کردار۔ پانی ہمارے جسم میں بہت سے افعال سر انجام دیتا ہے۔ یہ جسمانی ٹیمپریچر کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ پانی غذائی اجزاء کو خلیات تک پہنچانے اور فاسد مادوں کو جسم سے خارج کرنے کے لیے بطور تسہیل کنندہ کام کرتا ہے۔ انسانی جسم میں فیٹس کن ٹیشوز میں زیرہ ہوتی ہیں؟ فیٹس انسانی جسم کو کیا فائدہ دیتے ہیں؟ یہ جلد کے نیچے اکٹھی ہو جاتی ہیں اور جسم کا ٹیمپریچر برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ دل، گردہ اور دوسرے اعضاء مثلا آنتوں کے گرد جمع ہو کر ان کو زخمی ہونے سے بچاتی ہیں۔ فیٹس اور آئل میں کیا فرق ہے؟ فیٹس اور آئل روغنیات کی 2 قسموں یعنی فیٹس اور آئل میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ فیٹس عام ٹیمپریچر پر ٹھوس جبکہ آئلز عام ٹیمپریچر پر مائع ہوتے ہیں۔ فیٹس حیوانی ذرائع سے حاصل ہوتے ہیں جبکہ آئل پودوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ پروٹین سے کیا مراد ہے؟ جسم میں پانی کے بعد سب سے زیادہ مقدار پروٹین کی ہوتی ہے۔ عضلات، ٹیشوز اور خون زیادہ تر پروٹینز پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ہمارے جسم میں پروٹین کی بدولت بہت سے ایسے افعال کار فرما ہو رہے ہیں جو اس کی غیر موجودگی میں ناممکن ہے۔ وٹامن کیا ہیں؟ ایسے ان آرگینک مادے جن کی انسانی جسم کو نارمل طریقے سے نوشونما پانے کے لیے بہت قلیل مقدار میں ضرورت ہوتی ہے، وٹامنز کہلاتے ہیں۔ وٹامنز کے نام یہ ہیں: وٹامن اے، بی، سی، ڈی، ای اور کے۔ وٹامن کو کتنے گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ وٹامن کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: چربی میں حل پذیر وٹامن، پانی میں حل پذیر وٹامن۔ چربی میں اس قسم کے وٹامن میں اے، ڈی، ای، کے شامل ہیں اور پانی میں حل پذیر میں اس قسم کے وٹامن میں بی اور سی شامل ہیں۔ فیٹ سلیوبل وٹامن کا نام، یہ جو چربی والے ہیں نا ان کو فیٹ سلیوبل بھی کہتے ہیں۔
विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये चर्बी में अल्पजी। नाइट ब्लाइंडनेस क्या है, इसकी वजह लिखिए। विटामिन ए की कमी से एक बीमारी जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं हो जाती है। इस मर्ज में मुबतला इंसान को रात के वक्त दिखाई नहीं देता। विटामिन डी किन चीज़ों से हासिल होता है, इसकी कमी से पैदा होने वाली दो बीमारियों के नाम लिखें। विटामिन डी हासिल करने का सबसे बेहतरीन जरिया सूरज की रोशनी है। इंसानी जिल्द सूरज की रोशनी में विटामिन डी खुद बनाती है। इसके अलावा विटामिन डी मछली के जिगर के तेल, दूध, मक्खन, क्रीम और अंडे की जर्दी से भी हासिल किया जा सकता है। इसकी कमी से पैदा होने वाली दो बीमारियां रिक्टस और ओस्टोमेलिशिया हैं। रिक्टस और ओस्टोमेलिशिया में फ़र्क लिखिए। विटामिन डी की कमी के बायस हड्डियां नरम, खोखली और टेढ़ी हो जाती हैं। अगर ये बीमारी बचपन में हो तो इसे रिक्टस और अगर बालक उम्र में हो तो ओस्टोमेलिशिया कहते हैं। विटामिन ई के ज़राए लिखें। विटामिन ई को बीजों के तेल, गंदम और अंडों से हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा ये हरी सब्जियों, सलाद, बंद गोभी, गाजर वगैरह में भी वाफर मकदार में पाया जाता है। विटामिन के का फ़ायदा तहरीर करें। विटामिन के खून के जमने में मदद देता है। विटामिन के की कमी के बाद खून में जमने की सलाहियत कम हो जाती है। कैल्शियम का इंसानी जिस्म में क्या किरदार है कि खून के जमने, पैगामा की तरसील, हड्डियों के बनाने और मसल के फैलने और सुकड़ने में मदद देता है। आयरन का इंसानी जिस्म में किरदार बयान करें। आयरन हेमोग्लोबिन का हिस्सा है जो ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। आयरन की कमी से खून की कमी की बीमारी यानी एनीमिया हो जाती है। मतवाज़न ग़िज़ा से क्या मुराद है, वो ग़िज़ा जिसमें मुनासिब मकदार में सारे ग़िज़ाई अज़्ज़ा मौजूद हो मतवाज़न ग़िज़ा कहलाती है। 4 एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम लिखें। हमारे जिस्म में पाए जाने वाले एंडोक्राइन ग्लैंड दर्ज है। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पैंक्रियाज। पिट्यूटरी ग्लैंड को या मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, जिस्म में इसका क्या किरदार है। पिट्यूटरी एक छोटा सा ग्लैंड है जो साइज में बमुश्किल मटर के दाने के बराबर होता है। मास्टर ग्लैंड दिमाग के एक हिस्से से जुड़ा होता है, क्योंकि कि ये तमाम ग्लैंड के अफ़ाल को कंट्रोल करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। थायराइड ग्लैंड से क्या मुराद है, थायराइड ग्लैंड गर्दन में अगली जानब वाक़या होता है। थायराइड ग्लैंड दो किस्म के हार्मोन बनाता है। दोनों हार्मोन आयोडीन की मौजूदगी में खारिज होते हैं। ये हार्मोन जिस्म के मुनासिब नोशोनुमा में मदद देते हैं और कैल्शियम की मकदार हाथ से भरने नहीं देते। एड्रेनल ग्लैंड का इंसानी जिस्म में क्या किरदार है, ये ग्लैंड जोड़े की शक्ल में हर गुर्दे के ऊपर वाले सिरे पर वाक़या होते हैं। ये खून में ग्लूकोज की मकदार को कंट्रोल करते हैं, जिस्म के गैर इरादी अफ़ाल को कंट्रोल करते हैं, इंसान को हादसाती तौर पर पेश आने वाले वाक़यात के लिए तैयार करते हैं, मसलन गुस्सा, खौफ, लड़ाई झगड़ा, गम वगैरह, जिनके दौरान दिल की धड़कन बढ़ जाती है और मेटाबॉलिज्म की रफ्तार तेज़ हो जाती है। इंसुलिन का जिस्म में क्या किरदार है, इंसुलिन से खून में ग्लूकोज की मकदार कम होती है। इंसुलिन में ग्लूकोज की मकदार को मुकर्रर हद तक लाने में मदद करता है। एजिंग से क्या मुराद है, इंसान नौजवानी की उम्र से अपने शबाब तक पहुंचता है। इन तमाम मराहल को तय कर लेने के बाद इसके जिस्म में कुछ ऐसी मनफी तब्दीलियां रोनुमा होती हैं जो इसके जिस्म में तोड़ फोड़ का अमल शुरू कर देती हैं। इसका जिस्म कमज़ोर हो जाता है। जिस्म में रूनुमा होने वाली इन्हीं मनफी तब्दीलियों के अमल को एजिंग कहते हैं। वर्जिश के जिस्म पर दो असरात बयान करें। वर्जिश के फ़वाइद तहरीर करें। वर्जिश जिस्म के लचक को बरकरार रखती है और इस लचक की वजह से पट्ठे और जोड़ खिंचाव से महफूज रहते हैं। जब पट्ठे मजबूत हों तो इंसान ज़्यादा ज़ोर वाले काम सर अंजाम दे सकता है। मजबूत पट्ठे न सिर्फ रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें मुख्तलिफ सेहत काम करने में मदद देते हैं, बल्कि वो हमारी हड्डियों और जोड़ों को भी सहारा फराहम करते हैं। वर्जिश पट्ठों को मजबूत बनाते हैं में अहम किरदार अदा करती है। फर्स्ट एड क्या है, फर्स्ट एड ऐसी मदद है जो किसी मरीज़ को हादसे की सूरत में अस्पताल पहुंचाने से पहले दी जाती है। कुत्ते या बिल्ली के काटने से कौन सी बीमारी पैदा होने का खदशा है, या जानवरों के काटने से कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं। इन बीमारियों में रेबीज और टेटनस जैसी बीमारियां शामिल हैं। 4 वायरल यानी कि वायरस से पैदा होने वाली बीमारियों का नाम लिखें। स्मॉल पॉक्स, पोलियो, खसरा, एड्स। स्मॉल पॉक्स की 4 अलामत लिखें। इस बीमारी की अलामत में अचानक बहार का होना, सर दर्द, कमर दर्द, आना, बाज़ दफ़ा बच्चों में ख़ास तौर पर झटके लगना, बहार के तीसरे रोज़ बाजू और टांगों पर दाने निकल आते हैं। पोलियो की अलामत लिखिए।
یہ بیماری زکام کے ساتھ بخار، قے اور عضلات میں درد سے شروع ہوتی ہے۔ بعض اوقات فالج کی نوبت نہیں آتی، لیکن اگر وائرس کا حملہ زیادہ خطرناک ہو تو جسم کا ایک حصہ کمزور یا مفلوج ہو جاتا ہے۔ اس کا حملہ زیادہ تر ایک یا دونوں ٹانگوں پر ہوتا ہے۔ ادھر گیا ہے، اس کو چیک کرنا پڑے گا۔ جی یہ ہے یہاں پہ، اس کا حملہ زیادہ تر ایک یا دونوں ٹانگوں پر ہوتا ہے، جس سے یہ حصہ پتلا ہو جاتا ہے اور جسم کے دوسرے حصوں کی نسبت اس کی افزائش سست ہو جاتی ہے۔ فلو کی دو علامات لکھیے۔ اس بیماری میں گلا خراب ہوتا ہے، مریض کو بخار اور کھانسی ہوتی ہے، ناک کی جھلی اور آنکھوں سے پانی بہتا ہے، سر درد اور پٹھوں میں شدید اینٹھن محسوس ہوتی ہے، معمولی کام کاج کے بعد تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ خسرہ کی چار علامات لکھیے۔ بخار، ٹھنڈ، بہتا ہوا ناک، دکھتی ہوئی سرخ آنکھیں اور کھانسی اس کی علامات میں شامل ہے۔ ایڈز کیسے پھیلتا ہے؟ ایڈز کا مرض ایک خاص وائرس سے پھیلتا ہے جو جسم کے مدافعتی نظام کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس مرض کی وجہ سے جو بھی بیماری انسانی جسم میں داخل ہوتی ہے وہ سنگین صورت اختیار کر لیتی ہے اور انسان کو موت سے ہمکنار کر دیتی ہے۔ ایڈز کے وائرس کو HIV کہتے ہیں، ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس۔ ایڈز کی علامات لکھیں۔ مریض کو شروع میں معمولی زکام ہوتا ہے، اس کے بعد مریض کئی مہینوں اور سالوں تک بالکل ٹھیک رہتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ مکمل ایڈز کا مریض بن جاتا ہے۔ اس دوران تیزی سے وزن کم ہوتا ہے، 1 ماہ تک اسہال رہتا ہے، بخار، کھانسی اور نمونیا ہو جاتا ہے، جسم پر داغ دھبے بن جاتے ہیں۔ ایڈز سے بچنے کے لیے کوئی 2 احتیاطی تدابیر تحریر کریں۔ اس بیماری سے بچنے کے لیے ہمیشہ اپنے جیون ساتھی تک محدود رہیں، قرآنی احکام پر عمل کریں، اگر انجیکشن لگوانا ضروری ہو تو استعمال شدہ سرنج استعمال نہ کریں، خون کے لینے اور دینے سے پہلے HIV ٹیسٹ کروا لیں۔ ایڈز بیماری کے وائرس کا کیا نام ہے؟ HIV کس کا مفہوم ہے؟ ایڈز کے وائرس کو HIV کہتے ہیں، یعنی کہ ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس۔ ہیپاٹائٹس A کی 2 علامات لکھیے۔ ہیپاٹائٹس A وائرس کا نام HAV ہے۔ اس بیماری کو بنیادی علامات میں تھوک کا خاتمہ، جی میں تلانا، انتہائی جگر کی سوزش، پیلیا، جانڈس شامل ہیں۔ TB سے کیا مراد ہے؟ پھیپھڑوں کی TB ایک متعدی بیماری ہے جو بیکٹیریا سے پیدا ہوتی ہے۔ اس بیماری میں 1 ماہ یا اس سے زیادہ مسلسل کھانسی رہتی ہے، بعض اوقات بلغم کے ساتھ خون آتا ہے، مسلسل بخار رہتا ہے، رات کو سوتے وقت پسینہ آتا ہے، بھوک میں کمی ہو جاتی ہے، وزن میں کمی واقع ہو جاتی ہے، معمولی کام کاج کے بعد تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ بیکٹیریا سے پیدا ہونے والی 4 بیماریوں کا نام لکھیں۔ یہ ہے ٹیوبرکلوسس، ووپنگ کف، ٹائیفائڈ، کالرا۔ ووپنگ کف کی 4 علامات: بچہ بغیر سانس لیے تیزی سے بہت دیر تک کھانستا رہتا ہے، یہاں تک کہ کھانستے کھانستے اس کے منہ میں سے چپکنے والا بلغم آ جاتا ہے اور ہوا اس کے پھیپھڑوں میں ایک تیز آواز سے جاتی ہے۔ کھانسنے کے دوران خون میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے بچے کے ناخن اور ہونٹ نیلے ہو جاتے ہیں۔ کھانسنے کے بعد بچے کو قے بھی آ سکتی ہے۔ کھانسی کے وقفوں کے درمیان بچہ صحت مند نظر آتا ہے۔ ٹیٹنس سے کیا مراد ہے؟ ٹیٹنس ایک اچانک لگنے والی بیماری ہے، اس کے جراثیم عام طور پر مٹی کے گوار انسانوں اور جانوروں کے فضلے میں زندہ رہتے ہیں۔ کسی انسان کو سڑک یا گلی میں چوٹ لگنے سے جلد کو خراش آ جائے تو یہ جراثیم زخم میں پہنچ کر زہریلا مواد پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی جانور یا بلی، مثلا بلی، کتا وغیرہ کاٹ لے تو بھی ٹیٹنس کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ٹیٹنس کی 2 علامات لکھیں۔ جسم کے تمام پٹھے سخت ہو جاتے ہیں جو تمام عرصے میں سخت ہی رہتے ہیں، اور بعد میں پٹھوں میں شدید اینٹھن، جھٹکے لگتے ہیں جس سے مریض کو بہت درد ہوتا ہے۔ منہ کے پٹھے سخت ہو کر منہ کو بند کر دیتے ہیں جسے لاگ جا کہتے ہیں۔ کیریئر سے کیا مراد ہے؟ ایک مثال دیجیے۔ ٹائیفائڈ کے جراثیم انسانی جسم میں رہتے ہیں، ایسا مریض جس مرض کا کیریئر کہلاتا ہے اور پیشاب اور بہانہ کے ذریعے جراثیم خارج کرتا ہے۔ ٹائیفائڈ کی علامات کیا ہیں؟ اس بیماری میں ہلکا سر درد رہتا ہے، ٹائیفائڈ بخار لمبے عرصے تک رہتا ہے۔ ٹائیفائڈ بخار کا حملہ زیادہ تر
10 से 30 साल की उम्र में होता है। बरसात में इस बीमारी का हमला बढ़ जाता है क्योंकि मक्खियों की बीमार होती है। ये बीमारी आलूदा पानी और आलूदा खाना खाने से होती है। हैजा की बीमारी कैसे पैदा फैलती है? गंदा पानी, खराब ग़िज़ा, दूध काला पिलाने का सबसे बड़ा ज़रिया है। मरीज़ का सेहतमंद शख्स से बराह रास्त रब्ता भी इस बीमारी को फैलाने में अहम किरदार अदा करता है। रिंगवर्म पर नोट लिखें। रिंगवर्म ज़्यादातर गोल दायरे की सूरत में ज़ाहिर होती है। इनमें अक्सर खारिश होती है। सर के हिस्से में तो सर के बाल झड़ जाते हैं। मलेरिया की इब्तदाई अलामत क्या है? मलेरिया किस तरह फैलता है? मलेरिया का मर्ज इंसानी जिस्म में मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। इस मर्ज में पहले सर्दी से कपकपाहट होती है, बाद में तेज बुखार यानी कि 104 से जिस्म गर्म हो जाता है। अगर बुखार दायमी हो तो मरीज की तल्ली बढ़ जाती है। तीसरी स्टेज में मरीज को पसीना आता है और बुखार कम हो जाता है। मलेरिया पाकिस्तान में जुलाई से नवंबर के दरमियान होता है। हवा से फैलने वाली दो बीमारियों का नाम लिखिए जी। नज़ला, खसरा, काली खांसी, टीबी। जरासीम कितने ज़राए से फैलते हैं? नाम लिखें। जरासीम जी मुख्तलिफ ज़राए से फैलते हैं, मसलन हवा, पानी, टच, फेसिस, जानवर, खराश या जहम। स्टरलाइजेशन से क्या मुराद है? दूध, फलों के रस और दूसरी खाने वाली एशिया को एक या दो सेकंड तक 148.9 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। इससे जरासीम और इनके स्पोर खत्म हो जाते हैं। निकोटीन के असरात लिखिए। निकोटीन बहुत जहरीला कीमी मादा है। निकोटीन की वजह से तंबाकू नोशी की आदत तर्क करना मुश्किल होता है। सिगरेट पीने वाला निकोटीन का आदी हो जाता है। निकोटीन का एक और बड़ा असर यह है कि इससे खून की शरेयानें सिकुड़ जाती हैं, जिससे खून का जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। टार से क्या मुराद है? टार एक लेसदार चिपकने वाला मादा है जो सिगरेट पीने वाले के फेफड़ों के होलियों के इर्द गिर्द जमा होता रहता है, जिससे फेफड़ों के काम करने की सलाहियत मुतासर होती है। टार एक ऐसा मादा है जो फेफड़ों का कैंसर पैदा करता है। सिगरेट के धुएं से कौन सी बीमारियां फैलती हैं? ब्रोंकाइटिस या दायमी वर्म किसे कहते हैं? सिगरेट का धुआं सांस की नालियों और फेफड़ों में इन्फेक्शन और वर्म पैदा करता है, जिससे खांसी और बलगम की शिकायत रहती है। इस बीमारी को ब्रोंकाइटिस या दायमी वर्म कहते हैं। फेफड़ों का सरतान नहायत खतरनाक मर्ज है जो सिगरेट के धुएं में टार की वजह से होता है। स्मोकिंग के दो मेजर असरात बयान कीजिए। स्मोकिंग मुंह और फेफड़ों के कैंसर का बायस बनता है। सिगरेट पीने से दिल की बीमारियां पैदा होती हैं। दिमागी बीमारियों के नाम लिखें। साइकोसिस साइकोसिस में डेल्यूडम और डिप्रेशन बहुत आम है। डेल्यूडम यह बीमारी तेजी से ज़ाहिर होती है, जिसकी कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे नशा, दीगर बीमारियां, जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी और दिमाग में ऑक्सीजन की कमी। अस्टेरिया की कोई दो अलामत लिखिए। अस्टेरिया यह बीमारी ज़्यादातर औरतों में होती है। अंधा या बहरापन, सर दर्द, कानों में घंटियां बजना, गूंगापन, फालज, कभी तारी होना, दौरा पड़ना, भूख न लगना इस बीमारी की अलामत हैं। फोबिया क्या है? फोबिया की अलामत लिखें। किसी शख्स, जगह या चीज़ के मतलब नामुनासिब और बेजा खौफ फोबिया कहलाता है। बेजा और नामुनासिब डर या खौफ जो सिर्फ किसी एक जगह, शख्स या चीज़ से मुतल्लक हो, मसलन बस, खुली जगह, बंद जगह वगैरह, फोबिया जैसी अलामत हैं। डिप्रेशन क्या है? इसमें इंसान की तबीयत हमेशा परेशान मामूल से कम रहती है। ज़्यादातर सुबह के वक्त मिजाज मध्यम हो जाता है, सोच में कमी, फैसला करने की सलाहियत में कमी हो जाती है। मरीज खुद को हकीर समझने लगता है और हर काम खुद को कसूरवार समझता है। ड्रग्स की तारीफ कीजिए। आमतौर पर ड्रग का मतलब है किसी भी किस्म की दवाई जो हम बीमारी में इस्तेमाल करते हैं। अद्वियात दर्द को दूर करने, बीमारियों की रोकथाम और ज़िंदगी बचाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। पेन किलर्स क्या हैं? दो मिसालें दीजिए। ये ऐसी अद्वियात हैं जो कि दर्द से निजात दिलाती हैं। एस्पिरिन और पैरासीटामोल दर्द को ख़त्म करती हैं। मेडिसिन और नारकोटिक्स के दरमियान तमीज़ कीजिए। मेडिसिन अद्वियात की वो किस्म जो डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक एक मुनासिब मकदार में बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल की जाए, मेडिसिन कहलाती है। नारकोटिक्स ऐसी अद्वियात जो कि दर्द से निजात दिलाएं और नींद, गनूदगी और नशा तारी करें,
नारकोटिक्स कहलाती हैं। ओपियम और मार्फिन इसकी मिसालें हैं। सैडेटिव्स क्या हैं? दो मिसालें दीजिए। सैडेटिव्स ऐसी अद्वियात जो कि जहन की तस्कीन का बायस बने, इन्हें सैडेटिव्स कहते हैं। डायज़ेपाम और लोडाइज़ेपाम अहम सैडेटिव्स हैं। हेलोसिनोजेंस से क्या मुराद है? वो अद्वियात जो जहन पर अजीब असरात मुरतब करती हैं, मसलन जगह या मुकाम, आवाज़, रंग, बाकी महसूसात में वगार, ऐसी अद्वियात को हेलोसिनोजेंस कहते हैं। डेंगू बुखार की अलामत। डेंगू बुखार की अलामत में अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, जोड़ों और उजलात में शदीद दर्द, मतली, कै का होना, गदूदों का फूलना वगैरह शामिल है। डेंगू बुखार की दो वजूहत लिखिए। डेंगू बुखार डेंगू वायरस से मुतासरा मादा मच्छर से होता है। ये मच्छर डेंगू वायरस को डेंगू से मुतासरा इंसान के खून से हासिल करता है। डेंगू वायरस एक आदमी से दूसरे आदमी में बराह रास्त मुंतकिल नहीं फैल सकता। इस सुबह सवेरे और दोपहर गुरूब आफ्ताब से पहले इस मच्छर के काटने का खतरा ज़्यादा होता है, ताहम ये दिन में किसी वक्त भी काट सकता है। डेंगू बुखार की एहतियात लिखिए। डेंगू बुखार से बचाव की तदाबीर क्या है? जिन बर्तनों में पानी हो मुनासिब तरीके से ढाँप कर रखें। पानी को फर्श, गुलदान और गमलों वगैरह में खड़ा ना होने दें। मच्छर मार कोयल, मैट और स्प्रे का इस्तेमाल करें। डेंगू बुखार से बचने के लिए डेंगू वायरस से मुतासरा मच्छरों का खात्मा ज़रूरी है। एटमॉस्फेयर की तारीफ। खुला हवाई या एटमॉस्फेयर गैसों का गिलाफ है जिसने ज़मीन को घेर रखा है। एटमॉस्फेयर की मोटाई 200 किलोमीटर है। एटमॉस्फेयर की चार तहों का नाम लिखें। एटमॉस्फेयर की चार तहें दर्ज झैल हैं: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर तह पर नोट लिखें। ये तह सतह ज़मीन से शुरू होकर 18 किलोमीटर की बुलंदी तक फैली होती है। हवा में मौजूद गैसों और आबी बहरात की ज़्यादातर मिकदार इसी तह में पाई जाती है। हवाएं, आबोहवा और मौसम इसी तह में वाक़ होते हैं। मेसोस्फेयर क्या है? मेसोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर और सतह ज़मीन से 85 किलोमीटर तक बुलंद एटमॉस्फेयर की तीसरी तह को मेसोस्फेयर कहते हैं। ये सर्द तह है जहाँ का टेम्परेचर -100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओजोन क्या है? ओजोन तह का फंक्शन तहरीर करें। ओजोन गैस जो स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होती है, ये गैस सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट शुआओं को ज़मीन तक नहीं पहुँचने देती। यह गैस ज़मीन के गिर्द एक हिफाज़ती गिलाफ बनाती है। ओजोन की तबाही की दो वजूहत। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की तारीफ करें। फ्रिज, एयर कंडीशनर, स्प्रे के डिब्बों और पैकिंग फोम के कारखानों से कुछ केमिकल खारिज होते हैं जिन्हें क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs कहते हैं। ये केमिकल ओजोन के साथ अमल करके इस तह की तबाही और बारीकी का सबब बन जाते हैं। नतीजतन ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट शुआएं ज़मीन तक पहुँच सकती हैं। ग्लोबल वार्मिंग से क्या मुराद है? मौजूदा सनती दौर में पोल्यूशन की वजह से एटमॉस्फेयर में बाज़ गैसों का मसलन कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन का तनासब बढ़ गया है। हवा में इन गैसों की मौजूदगी ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अर्ज के टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट की तारीफ कीजिए। शीशे का बना हुआ कमरा जिसमें पौधे उगाए जाते हैं और सूरज से आने वाली शुआएं इस कमरे के अंदर दाखिल होती हैं, जबकि कमरे के अंदर से लॉन्ग वेवलेंथ शुआएं बाहर नहीं निकल सकती। इस कमरे के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। आलूदगी पोल्यूशन की तारीफ कीजिए। कोई दो इकसाम के नाम लिखें। हवा, ज़मीन और पानी की खसूसियात में ऐसी नाखुशगवार तब्दीली जिससे इंसान और दूसरे जानदारों की ज़िंदगी पर बुरे असरात मुरतब हों या बुरे असरात मुरतब होने का खतरा हो, आलूदगी लाता है। इकसाम: फ़ज़ाई आलूदगी, आबी आलूदगी, ज़मीनी आलूदगी। पोल्यूटेंट्स की तारीफ करें। ऐसे तमाम फालतू और फाजिल मादे जो माहौल की आलूदगी का सबब बने पोल्यूटेंट्स या आलूदगान कहलाते हैं। फ़ज़ाई आलूदगी से क्या मुराद है? हवा इस वक्त आलूदा तस्वर की जाती है जब इसकी तरकीब या क्वालिटी में तब्दीली पैदा हो जाए। ये तब्दीली मुतअद्दिद गैसों, धुएं और ज़रात के हवा में शामिल होने से के नतीजे में पैदा होती है। फ़ज़ाई आलूदगी की दो वजूहत लिखें। फैक्ट्रियों, गाड़ियों और एनर्जी पैदा करने वाली यूनिटों में ईंधन का जलना। स्प्रे के डिब्बों से और पैकिंग फोम की तैयारी के दौरान क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अखराज। स्मोक किसे कहते हैं? धुएं में मौजूद भूरे रंग वाली नाइट्रोजन पर ऑक्साइड गैस रोशनी में दूसरी गैसों से मिलकर एक मरकब बनाती है जिसे स्मोक कहते हैं। तदाबी बारिश से क्या मुराद है? मुख्तलिफ कारखानों की चिमनियों से निकलने वाली गैसों में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड शामिल होते हैं। ये ऑक्साइड हवा में मौजूद ऑक्सीजन और पानी के साथ मिलकर
सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। ये तेजाब जब बारिश के कतरों के में शामिल होकर नीचे गिरते हैं तो तेजाबी बारिश का मौजब बनते हैं। तेजाबी बारिश एक बड़ा माहौलियाती मसला है। आबी आलूदगी से क्या मुराद है? आबी आलूदगी अमूमन सनती फाजल मवाद, शहरों की गंदगी, सीवरेज को आबी ज़खायर मसलन दरियाई नालों, झीलों, तालाबों, समंदरों में फेंकने से पैदा होती है। आबी आलूदगी की दो वजूहत। आबी आलूदगी अमूमन सनती फाजल मवाद, शहरों की गंदगी और सीवरेज को आबी ज़खायर मसलन दरियाई नालों, झीलों में तालाबों और समंदरों में फेंकने से पैदा होती है। आलूदगी के खात्मे के लिए दो तदाबीर लिखें। अशिया को इधर उधर या ज़मीन के नीचे ज़मीन या पानी के ज़हीरों में ना फेंकें। बेकार अशिया को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाएं। वसाइल का कम से कम इस्तेमाल करें और इन्हें ज़ाया ना होने दें। कारखानों, अस्पतालों और घरों का फजला मुनासिब तरीके से बेज़र बनाने के बाद हवा, पानी या ज़मीन में फेंका जाए। कुदरती गैस क्या है? कुदरती गैस के इस्तेमालात की बयान कीजिए। कुदरती गैस मुख्तलिफ गैसों का मजमूआ है जिनमें मीथेन, ईथेन, प्रोपेन वगैरह शामिल है। पाकिस्तान में कुदरती गैस के काफ़ी ज़खायर पाए जाते हैं। कुदरती गैस के इस्तेमालात। कुदरती गैस भी तवानाई का एक अहम ज़रिया है। ये बिजली घरों में इस्तेमाल में बिजली पैदा करने, सीमेंट और कीमी खादों को पैदा की तैयारी और दूसरे कारखानों को चलाने के अलावा घरों में चूल्हे जलाने के काम भी आती है। आजकल बहुत सी गाड़ियाँ भी गैस पर चलाई जा रही हैं। कोयला के दो इस्तेमाल लिखिए। पाकिस्तान में इस वक्त ज़्यादातर कोयला ईंटों के भट्टों में इस्तेमाल हो रहा है, ताहम इसे बिजली पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा रहा है। मादनियात से क्या मुराद है और किसे कहते हैं? मादनियात से मुराद वो तमाम अनासर मसलन सोना, लोहा, तांबा और मरकबात मसलन जिप्सम, माइका जो ठोस हालत में कुदरती तौर पर क्रशर्स में मौजूद होते हैं और इंसानी इस्तेमाल के लिए अहम है। अक्सर औक़ात मादनियाँ चट्टानों में पाई जाती हैं। ऐसी चट्टानें जिनमें ये मादनियाँ निकाली जाती हैं और कहलाती हैं। सिलिकॉन के दो इस्तेमालात। माइका से सिलिकॉन हासिल होता है जो शीशा बनाने के काम आता है। आजकल सिलिकॉन कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डेयरी फार्मिंग की अहमियत। इंसान की बेहतर नोशोनुमा और सेहत के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है। दूध, मक्खन, पनीर, गोश्त और अंडे मुतवाज़न ग़िज़ा का अहम ज़रिया हैं। यह मवेशी, गायें, भैंस, बकरियाँ वगैरह, मुर्गियों और मछलियों से हासिल होते हैं। माही परवरी से क्या मुराद है? मछलियाँ आला ग़िज़ाई से भरपूर खुराक का एक बहुत बड़ा ज़रिया हैं। मछलियाँ नदी नालों, झीलों, दरियाओं और समंदरों में पाई जाती हैं। रहू, थैला और ट्राउट हमारे ताज़ा पानियों में पाई जाने वाली मछलियाँ हैं। जंगली हयात क्या हैं? किसी इलाके या कुदरती इकोसिस्टम के तमाम गैर पालतू जानवर और तमाम खुदरो पौधे यानी नबातात जंगली हयात कहलाते हैं। जंगली हयात के दो फ़ायदे। जंगली हयात से इंसान, मुआशी, रिहायशी, सनती और ज़राइती और तबी लिहाज से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जंगली हयात से माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रहता है। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या हैं? किसे कहते हैं? ऐसे जानदार पौधे या जानवर जो मादूम होने के खतरे से दुचार हों। खतरे में मुबतला स्पीशीज़ या इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहलाती हैं। आबादी या पॉपुलेशन से क्या मुराद है? आबादी से मुराद किसी ख़ास इलाके में किसी ख़ास वक्त पर रहने वाले लोगों की तादाद है। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये साइंस के सारे लॉन्ग क्वेश्चन मैंने पढ़ के आपको बता दिए जी। आपने इसको याद कर लेना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना, अपनी दुआ में याद रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।